So hello students, welcome back on my channel. Today I am going to explain you exercise 1.2 in video 1 and video 2. In last video you have learned about plotting irrational numbers on the number line, but now we have to solve this exercise. If you want to solve this exercise, last two videos are really important. If you haven't go through last two videos, so don't do it. You couldn't understand it, so let's do it. Every irrational number is a real number. So is it true or false? It's true. As we have learned in the first video, there are many kind of numbers in a real number, in which natural number, whole number, integers, rational numbers, and even irrational numbers. So yes, we can say irrational numbers are in a real numbers. So second one is a little bit hard one and tragic. You have to understand this very well. In last video, I have shown you that roots of the positive numbers can be possible, but roots of the negative numbers could not be possible. Even no one's positive number root will be negative number. So here is a question: every point on the number line is of the form root m. But as we know, on the number line there are positive numbers as well as negative numbers also there. We can show this by the roots like root 0, root 1, root 4, root 9. But what about this? So we couldn't have the roots of these numbers. So we can say every point on the number line is of the form root m, where the m is the natural numbers. It couldn't be possible because when we are taking the natural numbers root, we couldn't find the negative numbers on the number line, and that's why it's false. Every real number is a irrational number. We know real numbers contains whole numbers, natural numbers, integers and rational numbers, but irrational number does not contains every whole number, natural number, integer and rational number. That's why every real number is not an irrational number. So that's false. Now the second are the square roots of all the positive integer irrational. So that is also wrong because as we know, what is irrational number? Irrational number is a numbers whose root couldn't be possible. मतलब अगर उसका रूट निकालने जाए, जैसे कि मैं रूट 3 निकालूं, ओके, तो रूट 3 is not a square of any number and that's why it's irrational number. But अगर हर एक इंटीजर की बात करें तो ऐसा नहीं होता, because 0, अगर रूट 0 बोलूं तो that is 0, आंसर is 0. अगर रूट 1 बोलूं तो आंसर is 1. तो कुछ में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं. सो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई एग्जांपल यहाँ पे आंसर आएगा नो, सो यहाँ पे पूछा इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, तो एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर. तो इट्स सिंपल, रूट 1 है, रूट 4 है, रूट 9 है, रूट 16 है एंड रूट 25. दोज हैविंग द रेशनल नंबर एज अ रूट. ओके, एंड श्योर how root 5 can be represented on number line. I am showing you. In last video we have learned about plotting the irrational number on the number line. Even though I am going to explain you again to make it completely clear, as I know that's a difficult point and difficult information to access on. So that's why I am going to explain you again. So that's the root 5 as we can see. So first of all work is रूट 5 से छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढो. तो अब रूट 5 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होगा? तो ऑब्वियसली 1 इज अ स्मॉलर स्क्वायर नंबर देन 5. अब 5 माइनस 1 कर दो तो 5 माइनस 1 विल बी 4. दोनों के रूट निकाल दो, रूट 4 एंड रूट 1 एंड रूट 4. रूट ऑफ 1 विल बी 1 एंड रूट ऑफ 4 विल बी 2. तो वी कैन से अगर मैं 1 और 2 लेता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा. तो मैं हॉरिजॉन्टली 2 लूंगा और वर्टिकली 1 यूनिट लूंगा. तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं, सो हियर इट्स अ नंबर लाइन, इट्स अ 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो एज वी कैन से हियर इट्स अ 2 ना, तो 0 to 2 यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इट्स अ 2 और 2 के बाद 1 यूनिट. आपको पता है यहाँ पे 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर है. मतलब आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे, मुझे अगर ऊपर 1 यूनिट लेना है मतलब 2 सेंटीमीटर की लाइन में ऊपर खींचूंगा. ओके, दिस इज 1 यूनिट, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर. अगर आप स्केल रखते हो तो 2 सेंटीमीटर लेना है, बट वो यूनिट 1 कहलाएगा. और मैं यहाँ पे वापस से राउंडर लूंगा. राउंडर का पॉइंटेड
पॉइंटेड नील यहाँ पे रखूंगा और पेंसिल की टिप मैं यहाँ पे रखूंगा और राउंडर को ऐसे घुमाऊंगा, यहाँ पे राउंडर रख के यहाँ पे ऐसे घुमाऊंगा और ये मेरा हो जाएगा √5. ओके, एंड दिस इज ट्राइंगल विच वी आर हैविंग. यहाँ पे नेमिंग दे देता हूँ O A एंड B. ओके, O एंड B. मैं यहाँ पे बोलूंगा OA. व्हाट इज OA? OA इज अ डिस्टेंस फ्रॉम O to A. वो कितना है? तो दैट इज 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स. एंड AB, व्हाट इज AB? AB इज 1 यूनिट. ओके, तो अगर मैं इसमें लास्ट टाइम जैसे मैंने कैलकुलेशन की थी वैसे आप करोगे तो आपको √5 मिल जाएगा एंड दैट्स इट. ओके, after doing 1.2 we have to learn much more about irrational number as well. So wait a second, stay tuned. I am going to explain you. As I wanted to give you more brief information about irrational number, तो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे रियल नंबर्स के दो मेन पार्ट्स बना सकते हैं, जिसमें पहला आएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. आप लोग जानते हो रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी होते हैं, और एज वेल एज इरेशनल नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बट अगर मैं मेनली बोलूं तो क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस याद रख लेना. कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. तो आप अगर ये याद रख लोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा. रेशनल नंबर, सो नंबर्स which can be shown in P by Q form where P and Q belongs to, याद रखना ये belongs to की साइन है, belongs to Z, but Q does not is equals to 0. जबकि इधर बोलू तो यहां पे आएगा नंबर्स विच कैन नॉट बी शोन, सॉरी शोन नहीं बोलेंगे, रिप्रेजेंट, कैन बी रिप्रेजेंटेड represented in P by Q, represented in P by Q form. ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है. बट क्या यही सब कुछ है? तो नहीं, इससे आगे भी एक चीज है. हम लोग डेसिमल फॉर्म जानते हैं. जब हम लोग 1/2 करते हैं, अगर मैं 1/2 कर दूं तो आपको पता है ये 0.5 आएगा. अगर मैं 1/7 करूं तो ये कुछ आएगा 0.1428557 एंड वापस से ये रिपीट हो जाए. ओके, तो हम लोग जब भी डिवीजन करते हैं तो या तो हम लोगों को या होल नंबर मिल जाता है या तो डेसिमल फॉर्म में मिल जाता है. तो अगर मैं डेसिमल फॉर्म के बारे में बात करूं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में, तो रेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म ऑलवेज will always be either terminated or non-terminating and रिपीटिंग. वापस से बात बोल रहा हूं, वापस से देख लेना, समझ लेना. डेसिमल फॉर्म विल ऑलवेज बी आइदर टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. व्हाट डज दैट मीन? मतलब अगर मैं टर्मिनेटेड की बात करता हूं, टर्मिनेटेड मतलब जिसका एंड आ जाता है. जैसे हम लोग ये देख सकते हैं 0.5. जैसा मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1/4, दैट विल बी 0.25. मतलब इसका एंड आ गया, मतलब आगे अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है. बट अगर मैं 1/7 करता हूँ
तो 0.1428 मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। 1/7 यहाँ पे मैं डिवीजन करूंगा 1/7। आप जानते हो 7 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं 0.0 रख दूंगा, जिससे यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 ज़ा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3, वापिस से पॉइंट है मतलब 0 मिल जाएगा। 4 ज़ा 28, 2 0, वापिस से 2 ज़ा 14, 6 0, 8 ज़ा 56, 4 0, 5 ज़ा 35, 5 0, 7 ज़ा 49, 1 और 0 और वापिस से 1 0 आया, वापिस से ये पूरा रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड आएगा ही नहीं, आप इन्फिनिटी तक चलते जाओ, आपका डेसिमल फॉर्म वैसे चलते ही जाएगा। बट रिपीटिंग आप देखो तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट हो रहा है। जैसे ये इसकी बात करो तो 1 4 2 8 5 7, तो वापिस से आपको मिल जाएगा 1 4 2 8 5 7। ओके, सो वी कैन से दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे और कौन से हैं, तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो वैसे का वैसा। जैसे यहां पे है 1/3। अगर आप 1/3 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.33333333 एंड इन्फिनिटी तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। जो भी चीजें रिपीट होती है उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 0.3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार, बराबर। यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा था तो पूरे उसके ऊपर बार, ठीक है। अगर मैं 2/6 लेता हूं तो 2/3 लेता हूं तो ये हो जाएगा 0.6666666। आप चाहो तो इसको डिवीजन करके देख सकते हो। सो इसको मैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में 0.6 बार रखूंगा, मतलब जो भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर मैं बार रख दूंगा और मुझे आंसर मिल गया, बराबर। बट दिस इज अबाउट रेशनल नंबर। सो व्हाट्स अबाउट इरेशनल नंबर? तो मैं इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। डेसिमल फॉर्म विल बी, यहां पे लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई एंड नहीं होता वैसे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होगा। आपको पता हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी, पार्ट 1 में भी, यहां पे भी मैं समझा रहा हूं वापस से। तो जैसे कि मैं यहां पे बोलता हूं 1.428394649128910। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ ही साथ कोई भी ब्लॉक, कोई भी नंबर पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 4 है तो 4 रिपीट हो रहा है, बट वो पर्टिकुलर इंटरवल बीच में नहीं है। 2839 तो वापस से 4 आया तो 2839 वापस से नहीं है, वापस से 4 कब आया तो 4 आया ही नहीं। सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही एंड हो रहा है और ना ही रिपीट भी हो रहा है। सेम में मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकता हूँ 0.10 110 111 4 times 1 0 5 times 1 0। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये भी नंबर्स यहाँ पे भी कोई भी इंटरवल रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूं 1 तो 1 आ रहा है, बट उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है, तो इट इज नॉट एक्चुअली रिपीटिंग, मतलब डिजिट्स रिपीट हो रहा है बट कोई पर्टिकुलर ब्लॉक, कोई पर्टिकुलर इंटरवल वापस से रिपीट नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, और अगर हो सके तो आप इसे नोट्स में लिख लो। यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके भी आप इसे नोटबुक में लिख लेना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। अब इसके ऊपर से हम लोगों को एक्सरसाइज 2.1.3 करनी है। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सो वेट अ सेकेंड। So okay friends, we have an example over here. We have to state the kind of decimal expansion each of the following rational number है। अगर यहाँ पे रेशनल नंबर है तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटेड और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट वी हैव टू सी, हम लोग एक्चुअल डिवीजन करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर है 1/4 उसको देखते हैं। तो डिवीजन करेंगे अगर हम लोग 1 and 4 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, 0 पॉइंट रखेंगे। 4 2 8
और ये 2 0 5 जा 20 और आंसर इज 0.25। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज टर्मिनेटेड। दिस इज टर्मिनेटेड एक्सपांशन। हम लोगों को स्टेट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर है, तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सेकंड वन, तो सेकंड हम लोग देखें 3/5, तो 3/5 में लिखता हूं तो यहाँ पे सिंपली 0.6 आंसर आएगा। मैंने डिवीजन नहीं किया, आप लोगों को डिवीजन करना है। 0.6 एंड आंसर 0.6 इज अ टर्मिनेटेड अगेन। ओके, अगर मैं थर्ड नंबर देखता हूं तो थर्ड इज 314/100। अगर आप डिवीजन करते हो तो इसका आंसर आएगा 3.14। वापस से इसका एंड हो चुका है तो ये भी टर्मिनेटेड है। सेम वे अगर मैं फोर्थ वन देखता हूं तो फोर्थ इज 11/12, तो 11/12 करता हूं तो अगर तो आएगा 0.91666। तो मतलब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ 0.91 तो रिपीट नहीं हो रहा है बट 6 रिपीट होता है, तो 6 के ऊपर मैं बार कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे मैं जानता हूँ कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, मैं अगर फिफ्थ की बात करता हूं तो फिफ्थ इज 7/11 और 7/11 आएगा 0.6363, मतलब ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट ही हो रहा है। और यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 63, तो मैं यहाँ पे 0.63 के ऊपर बार कर दूंगा और इट इज सेम वे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अंडरस्टूड। और सेम वे में अगर सिक्स नंबर का देखो तो 6 नंबर में है 9/11 और 9/11 के लिए भी सेम रहेगा 0.81818181। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ तो 0.81 बार आ रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास एक दूसरे टाइप के भी सम्स है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, सो वेट अ सेकेंड। So okay students, we have here another example. In last example we have learned about stating the kind of decimal expansion rational number has, but now हम लोगों को decimal form दिया हुआ है, उसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था प्लॉटिंग द irrational numbers on the number line बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म्स इन अ p by q फॉर्म, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलमोस्ट हर एक सीबीएसई के हर एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी स्कूल कैसा भी एग्जाम लेता हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो या कुछ भी हो, उसमें ये क्वेश्चन होता है और होता ही है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही से ध्यान देना। बहुत इजी भी है। पहला है 0.13। 0.13 का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब एकदम छोटे बच्चों वाली बात है। सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 13/100, सिंपल, बराबर। बट अगर मैं सेकंड के बारे में बताऊं तो 0.13 बार है। अब आपको पता है बार कब लगता है, बार मतलब ये 13 रिपीट होता ही जा रहा है। ओके, तो मैं सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू लिख दूंगा 0.131313 एंड मैं इसको x बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। 0.13 जो रिपीट हो रहा है मैं वो लिखूंगा 0.13131313। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बता दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे दूसरा, अब कितने नंबर के ऊपर बार था, तो मतलब 2 नंबर के ऊपर बार था। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर के ऊपर बार था। अगर मेरे पास 1 नंबर पे बार हो, मतलब 1 डिजिट और उसके ऊपर बार हो, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। अगर 2 डिजिट हो और उसके ऊपर बार हो तो मैं 100 मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मेरे पास 3 डिजिट हो और उसके ऊपर बार हो तो मैं
1000 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे पास 4 डिजिट पे बार होंगे तो मैं 10,000 मल्टीप्लाई करूंगा। रिमेंबर दिस, मैं यहाँ पे एक डिजिट, अगर मेरे पास ये बार के नीचे 2 डिजिट है तो दो डिजिट के हिसाब से मुझे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट अस मल्टीप्लाइंग 100। अगर मैं यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100x हो जाता है, और अगर मैं यहाँ पे इसको भी 100 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 इस साइड, ये पॉइंट को 2 बार इस साइड हटाएगा तो इट विल बी 1 and 2, so it will be 13.131313 2। आप बोलोगे सर यहाँ पे 13 वापस से नया कैसे आ गया? मैंने यहाँ पे डॉट 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 किया है, ये डॉट्स रखना कंपलसरी है। ये डॉट 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 किया है मतलब यहाँ पे 13 इनफाइनाइट टाइम है, जिसमें मैंने यहाँ पे 13 एक और बार बढ़ा दिया। जितने डिजिट्स मैंने यहाँ पे लिए उतने डिजिट्स मैं यहाँ पे भी लूंगा इसकी वजह से, बराबर। अब मैं 2 - 1 करूंगा। रिमेंबर, मैं अब 2 - 1 करूंगा, जिसमें 2 - 1 में 2 की जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे है वो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 2 का पहले 2 का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो दैट इज 100x, माइनस 1 का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे दैट इज x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का राइट हैंड साइड मतलब ये 13.1313 एंड 13, और माइनस 1 का राइट हैंड साइड दैट इज 0.1313 एंड 13। डॉट 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 रखना मत भूलना, उसके मार्क्स कट जाएंगे। 100x - x दैट इज 99x। ओके, और अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूं तो आपको डेसिमल के सब्ट्रैक्शन करने आने चाहिए। मैं फिर भी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जहां पे मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। 13.131313 डॉट 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 माइनस 0.131313 डॉट डॉट डॉट। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए 33। ये तो पूरा यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, मतलब हमको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट के बाद क्या बचेगा 13, तो हम लोग यहाँ पे 13.000 नहीं रखेंगे, डायरेक्टली 13 रख देंगे। ओके, एंड लास्ट में x इज इक्वल्स टू 13/99। सो दिस इज आवर आंसर। सो हम लोग बोल सकते हैं 0.13 बार इज इक्वल्स टू 13/99, मतलब 13/99 होगा तो 0.13 बार आ जाएगा। ओके, डोंट यू वरी, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करूंगा जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या और कैसे हो रहा है। सो वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेंगे, ये वाला थर्ड। सो दैट इज 0.912 बार। ओके, वापस से मैं पूछूंगा यहाँ पे रिपीट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 1 और 2 पे बार है, मतलब 1 2 1 2 1 2 रिपीट होगा। सबसे पहले मैं x में लिख दूंगा 0.9121212 एंड गो ऑन। इसको मैं रिजल्ट 1 दूंगा, बराबर। अब मैं वापस से पूछूंगा यहाँ पे कितने नंबर्स पे बार था। सो दैट इज 2 डिजिट्स पे। याद रखना 9 को नहीं गिनना है, 9 के ऊपर बार नहीं है। सो 2 डिजिट पे बार था तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 100। सो 100x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी, अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 बार इस साइड हटेगा तो दैट इज 91 पॉइंट, इट इज 21 21 21 एंड 21। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और बार एक डिजिट बढ़ा देते हैं। जितने पॉइंट के पीछे इस यहाँ पे ऊपर डिजिट है उतने ही यहाँ पे भी डिजिट होने ही चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है क्या करना है, 2 - 1, तो दोनों के राइट हैंड साइड को माइनस कर दो। पहले तो 100x, पहले 2 और फिर 1 का x, और वैसे यहाँ पे इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दो। 91.21212121 माइनस 0.9121। वेट अ मिनट, आई एम गेटिंग शॉर्ट ऑफ द स्पेस ओवर हियर। हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे 2 डिजिट दोनों में से कैंसिल आउट कर देते हैं। आपकी चूजमेंट पे है, आप यहाँ पे कितने डिजिट्स लेते हो। आप 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, बट जो रिपीट हो रहा है वो मिनिमम 1 to 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितना रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 रिपीट हो रहा है तो मैंने 3 टाइम्स रिपीटेशन में लिया है, वो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डिजिट्स डेसिमल के पीछे 7 डिजिट्स है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के पीछे हम लोग 7 डिजिट्स ले लेंगे। ओके,
और माइनस करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 रखेंगे और माइनस करेंगे, माइनस में 0.912112 और डॉट 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 100x माइनस x दैट इज 99x, जो हमें पता चल जाएगा। और इन दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 21 है और पॉइंट के पीछे 91 है, यहाँ से सेम है 21 21 21 और यहाँ पे भी 21 21 21, तो मतलब वो कट हो जाएगा, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो यहाँ पे 2 माइनस 9, इसका सब्ट्रैक्शन ऐसे कुछ होगा 91.21212 और डॉट 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 माइनस 0.912112 और 0 0 0 0 0 0, 2 minus 9 will be 12 and 9 and 3.0, 90.3, पीछे वाले zeros नहीं गिनेंगे इसलिए 90.3, so 99x is equals to 903 upon 10 लिख सकते हैं और x is equals to 903 upon 990, ये दोनों को मैं 3 से कट कर सकता हूँ, तो इट इज 301 अपॉन 330, सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ 0.912 बार इज इक्वल टू 301 अपॉन 330, दिस इज माई आंसर, सिंपल एंड शॉर्ट। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करूंगा, सो वेट अ सेकेंड। So here guys we have last two examples about this. First one is represent 0.1429 in a p by q form. तो सबसे पहले x ले लेंगे और इसको expanded form में लिख देंगे 1.429। रिपीट क्या हो रहा है, पूरा 429, तो 429 वापस से 429, दो बार लिख दिया मैंने, एक 1 इस इक्वेशन नंबर 1 दूंगा। अब कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 4 2 और 9 के ऊपर 12 है, मतलब 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब 1000x इज इक्वल्स टू 1.429, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 1429.429 429 एंड 429। मैंने जैसे बोला पॉइंट के बाद यहाँ पे 9 डिजिट्स है, तो मैंने भी यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स लिए और इसे मैं 2 बोलूंगा। अब मैं अगर 2 माइनस 1 करता हूं तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1429.429 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो 1.429 आप अगर आप पीछे जाके इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 1000x माइनस x विल बी 999x एंड 1429 और इसका सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको मिलेगा 1429, ओके, एंड x इज इक्वल टू 1429 अपॉन 999, दिस इज द आंसर, सिंपल वन। ओके, अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को 0.9 प्लस 0.7 प्लस 0.47 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले 0.6 को तो मैं लिख सकता हूँ 6 अपॉन 10 दैट इज 3 अपॉन 5, दोनों को 2 से कट कर देता हूँ। तो अब दूसरी बात है 0.7 बार, 0.7 बार को मैं यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0.7 बार कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फॉर 0.7 बार x इज इक्वल टू बार 7 पे है तो 7 रिपीट होगा, 7 7 7 4 टाइम्स मैंने लिख दिया है, ओके। अब कितने नंबर्स पे, कितने डिजिट्स पे बार थे, तो एक डिजिट पे, तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा 10, दैट इज 10x एंड अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0 7 हो जाएगा, आगे 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, तो 7 और यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट 7 7 7 एंड 7 4 डिजिट्स हमें लेने हैं, इसलिए इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे और 2 माइनस 1 करेंगे, जिससे ये हो जाएगा 10x माइनस x दैट इज 7.7 7 7 एंड 7 माइनस 0.7 7 7 एंड 7, और अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 10x माइनस x विल बी 9x और यहाँ पे आंसर आएगा 7, तो x इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। वैसे ही अगर मैं फॉर बात करते हैं 0.47 बार की, तो 0.47 बार में 4 और 7 पे बार है, सबसे पहले x इज इक्वल टू, मैं अगर 4 और 7 पे बार है मतलब वो दोनों रिपीट हो रहे हैं, 4 7 4 7 4 7,
यहाँ पे 3 बार मैंने लिख दिया है। वैसे कितने डिजिट्स पे बात है, तो 2 डिजिट्स पे बात है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 47.474747 100x माइनस x करूंगा तो यहाँ पे 99x, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 47 and 47 minus 0.47 और दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 99x और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हुए मुझे मिलेगा 47 और मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू 47 अपॉन 99। ओके, वेट अ सेकेंड। या 47 अपॉन 99 मतलब मुझे तीनों चीजें मिल गई है। मैं यहाँ पे अब बाजू में कैलकुलेशन करूंगा, 0.6 के जगह मैं यहाँ पे 3 अपॉन 5 लिख सकता हूँ, प्लस 0.7 की जगह 7 अपॉन 9 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 0.47 की जगह मुझे मिला है 47 अपॉन 99। तो 5, 9 एंड 99 का एलसीएम निकालने जाए तो मिलेगा लगभग 495 सॉरी, या 495। अब मैं यहाँ पे 495 करने के लिए मुझे यहाँ पे 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 99, प्लस अगर मुझे यहाँ पे 495 बनाना है तो मुझे 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 55, प्लस अगर मुझे 47 को 495 बनाना है तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। नहीं, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, आई मेड अ मिस्टेक, आई थिंक सो। या इट्स 5, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, सो 99 3s विल बी 297 प्लस 55 7s विल बी 385 प्लस 47 5s, so 47 5s विल बी 235 अपॉन 495। तीनों का एडिशन कर दो, 2 5 and 5 and 17 18 and 21 2 and 9 917 upon 495 is our answer. So I hope guys you can understand all of the topics which I have covered in this particular video, and stay tuned for another videos, एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक जरूर करना। कैसा वीडियो लगा वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, और कौन सा टॉपिक नहीं भी समझ में आया वो भी आप कमेंट में लिख के बताओ। आपका व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल करके चीजें समझाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड।